خواتین و حضرات السلام علیکم، میں ہوں منظور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہیلو ڈی ڈی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام ایک لائیو فون ان انٹریکٹیو شو ہے جس میں آپ ہمیشہ اپنی فون لائنز کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل مہمانوں کے ساتھ براہ راست بات چیت کرتے ہیں مختلف موضوعات پر۔ ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کے مہمان ہیں جناب منظور احمد قادری صاحب، مینیجنگ ڈائریکٹر JNK ایگرو انڈسٹریز ڈیولپمنٹ کارپوریشن، اور اس کے علاوہ یہ ڈائریکٹر فلوریکلچر بھی ہیں۔ ناظرین، اگر آپ منظور صاحب سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہوں یا آپ کے من میں کوئی سجھاؤ ہو یا کوئی مشورہ ہو تو آپ کے لیے ہماری 2 فون لائنز اویلیبل ہیں جن کے نمبرز آپ کی ٹی وی اسکرین کے باٹم پر آپ کو کال کرتے ہوئے ملیں گے۔ منظور صاحب خوش آمدید ہے پروگرام میں سر۔ بہت بہت شکریہ سر، یہ جو ایگرو انڈسٹریز ہے، ایگرو انڈسٹریز ڈیولپمنٹ کارپوریشن، اس کا مینڈیٹ کیا ہے اس ڈپارٹمنٹ کا؟ ایگرو انڈسٹریز ڈیولپمنٹ کارپوریشن بنائی گئی ہے 70s میں، لیٹ 70s میں جی۔ تو اس کا مینڈیٹ یہ ہے کہ جو کسان اس اکانومی کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا، چاہے ان کے جو ان پٹس ہے ایگریکلچر پریکٹسز میں جو ان کو ان پٹس چاہیے، چاہے فارم مشینری چاہیے، پیسٹ سائڈس چاہیے، فرٹیلائزرز چاہیے، وہ ان کو پرووائڈ کرنا ایٹ اکانومیکلی وائبل ریٹس۔ اور دوسرا، اگر ان کے پروڈکٹس ہیں ان پروڈکٹس کو شوکیس کرنا، ان کے لیے ایک مارکیٹنگ پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا، یہ اس انڈسٹری کا مقصد ہے۔ اس کے علاوہ ایسے ایسیٹس کریٹ کرنا جس سے کہ اس فارمر کو بینیفٹ ملے، جیسے کہ کولڈ سٹور بنانا۔ کولڈ سٹور سے ہی اس کا جو پروڈکٹ ہے اس کی شیلف لائف کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ تو ہمارا ایک مینڈیٹ یہ بھی ہے کہ اس فارمر کو فیسیلیٹیٹ کرنا تاکہ اس کو ان پٹس پرووائڈ کیے جائیں، اس کو مارکیٹنگ کی فیسیلیٹی پرووائڈ کیا جائے، اور اگر اس کے پاس کچھ جو پروڈکٹس بنے ہیں ان کی شیلف لائف کو انکریز کرنے کے لیے اس کو فیسیلیٹی کی ضرورت ہے وہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں۔ یہ جو سر آپ کا ایگرو انڈسٹریز کا ڈپارٹمنٹ ہے یہ اسٹیبلش جیسے کہ آپ نے خود کہا 1970 میں ہوا تھا، تو یہ ایک پبلک سیکٹر انڈرٹیکنگ ہے دیکھا جائے تو۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جیسے کہ ہمارے یہاں کئی اور کارپوریشنز ہیں، ان کی اگر انالیسس کریں تو شاید زیادہ بہتر کارکردگی نہیں ہے، تو اس کے کمپیریزن میں آپ کی سچویشن کیا ہے؟ ہاؤ آر یو ڈوئنگ؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ایگرو انڈسٹریز ڈیولپمنٹ کارپوریشن ہے اس کو سرکار کی طرف سے کوئی بھی گرانٹ ان ایڈ نہیں ملتی ہے، پوری طرف سے سسٹین کرتی ہے۔ ہم اپنے فائنانسز، اپنے ریونیوز خود ہی جنریٹ کرتے ہیں، اور جتنے بھی ہمارے جیسے اس میں ہمیں کیپٹل چاہیے، کیپٹل انویسٹمنٹ چاہیے، جی، تو اس کے لیے ہمارے پاس ریسورسز ہیں، ہمیں جو امپلائیز کی سیلری ہے وہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو ایک پوری طرح سے ایک جو سیلف سسٹیننگ ماڈل ہے پبلک سیکٹر انڈرٹیکنگ کا، وہ ہمارے پاس۔ سر ریسورسز میں کس طرح کے ریسورسز ہیں آپ کے پاس؟ سب سے پہلے جو ہمارے ریسورسز جس سے ہم ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں، جیسے ہمارے پاس سری نگر میں، چنئی میں اور دلی میں کولڈ سٹورز ہیں۔ جی، ان کولڈ سٹورز کا اصلی مقصد جو ہے فارمر کو پرووائڈ کرنا ایک پلیٹ فارم، تاکہ اگر اس کے پاس پروڈکٹ کو بڑھانے، اس کو شیلف لائف بڑھانے ریزرو کرنے کی ضرورت ہے تو وہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بات ایک بتا دوں کہ ایک آرگنائزیشن ہے گورنمنٹ آف انڈیا کی، اس کو ایپیڈا کہتے ہیں۔ جی، ایپیڈا نے یہاں پر ایک ایکسپیریمنٹ کیا سنو پیز کو کلٹیویٹ کرنے کا، تو وہ سنو پیز کو وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں جی، یورپ میں۔ تو وہ سنو پیز انہوں نے پلوامہ ڈسٹرکٹ میں کچھ ایک بینیفیشریز کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان سے جن کے پاس ایپل کے آرچرڈز ہیں، آرچرڈز میں وہ کلٹیویٹ کیا گیا، تو وہ سنو پیز کو انہوں نے پھر یہاں پر کولڈ سٹور میں ویلیو ایڈیشن کے لیے رکھا، وہاں پر پروسیسنگ کی، اور پھر الٹیمیٹلی 15-20 دن کے بعد اس کو یہاں سے انہوں نے ایکسپورٹ کیا۔ تو الٹیمیٹلی اس کا بینیفیشری وہی فارمر ہے، کیونکہ اگر ان کو یہ کولڈ سٹور کی فیسلٹی نہیں فراہم ہو جائے گی، اگر ان کو ہم نہیں پرووائڈ کریں گے، یہ فیسلٹی نہ ہو اویلیبل، پھر وہ جو ان کا ریٹرن ملنا چاہیے، جس کی وہ امید رکھتے ہیں، وہ اتنا نہیں ملے گا۔ جی سر، یہ جو ایگرو انڈسٹریز ہیں اس کی 4 میں مانتا ہوں کہ 4 فیکٹرز ہیں۔ ایک ہے ایگرو پروسیسنگ یونٹس، ایک ہے ایگرو ان پٹس مینوفیکچرنگ یونٹس، ایک ہے ایگرو پروڈیوس مینوفیکچرنگ یونٹس، اور ایگرو سروس ایریا۔ تو آپ ان ایریاز کو 1 بائی 1 تھوڑا ہمیں ایکسپلین کر دیجیے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو ہمارا ایک یونٹ ہے، ایک جو کمپوننٹ ہے، وہ ہو گیا یہ کولڈ سٹورز۔
आज़ाद पुर दिल्ली में हमारा कोल्ड स्टोर है, श्रीनगर में है, जम्मू में एक बन रहा है, 5,500 मीट्रिक टन का एक कोल्ड स्टोर बन रहा है, जिसका मकसद ही यही है कि हम फार्मर को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, फैसिलिटी प्रोवाइड करें। चिनैनी में हमारा एक कोल्ड स्टोर है। इसके अलावा हमारे पास बड़ी ब्राह्मणा में कैटल फीड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। तो भद्रवा में हम गुच्ची और सिडार ऑयल और लेवेंडर ऑयल को प्रोसेस करने के लिए भी जो फैक्ट्रीज हैं वो बना रहे हैं, वो अंडर प्रोसेस हैं। अगले साल तक वो इंशाल्लाह उनकी जो कमीशनिंग हो जाएगी। इसका मकसद है जो वहां पर लेवेंडर ऑयल कल्टीवेट करने वाले फार्मर हैं उसको ये फैसिलिटी चाहिए। अगर गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम बनाया जिसको पर्पल रेवोल्यूशन कहते हैं, पर्पल रेवोल्यूशन का मतलब है कि फार्मर को मोटिवेट किया जाए कि वो लेवेंडर की कल्टीवेशन करे। तो सरकार ने ही ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड की, एक्सट्रैक्शन यूनिट बनाया, जिससे कि इस फार्मर को हम एक यूनिट ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे कि इस लेवेंडर प्लांट से ऑयल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए और फिर इसकी मार्केटिंग भी कैसी की जाए। क्योंकि अगर ये यूनिट नहीं होगा फिर फार्मर के पास कोई इसका जरिया नहीं है कि वो इस प्रोडक्ट का, इस प्लांट का फायदा ले सके। सर रोज ऑयल बड़ा कॉस्टली एक चीज है। रोज ऑयल का हमारे पास अभी कोई यूनिट नहीं है। सिडार ऑयल जो हमारे पास यूनिट है, और इसके अलावा गुच्ची और राजमा को, क्योंकि भद्रवा की जो राजमा है उस एरिया में, डिस्ट्रिक्ट डोडा में गुच्चीज की ये जो प्रोडक्शन होती है उसकी काश्त होती है, तो उसकी ये जो प्रोसेसिंग के लिए हम बना रहे हैं वहां पर भद्रवा में एक फैक्ट्री, तो जो अगले साल तक इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। सर वी हैव अ कॉल ऑनलाइन। हेलो हेलो जी। हेलो जी जी, अपना तारुफ दीजिए, सुन रहे हैं आपकी बात। हेलो 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 हाँ हाँ सुन रहे हैं आपकी बात, अपना तारुफ। कौन सा, आप कहाँ से? हेलो 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 हाँ बोलिए। हेलो सर। हाँ बोलिए बोलिए, अपना सवाल पूछिए। आवाज नहीं आ रही है आपको, मुझे लगता है। सर ये जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर आप कर रहे हैं, तो ये यहाँ श्रीनगर में भी है या दूसरे एरियाज में भी है? यहाँ पर हमारे पास खनुमों में फूड प्रोसेसिंग यूनिट है। एक है हमारा हनी प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि यहाँ का एक स्पेशल प्रोडक्ट है, दैट इज अकेशिया हनी। वो सिर्फ यहीं पर पाया जाता है, अच्छा, कश्मीर में ही। और उसका एक स्पेसिफिक पीरियड है जब अकेशिया प्लांट, जिसको कीकर कहते हैं, कीकर के जो फूलों से शहद निकलता है, हमारा स्पेशल प्रोडक्ट वही है। हम सिर्फ वही शहद प्रोसेस करते हैं। तो ये इस फार्मर के लिए एक फैसिलिटी है कि वो हम शहद उनसे खरीदते हैं और फिर उसको प्रोसेस करके हम बेचते भी हैं। यानी प्रोसेसिंग यूनिट्स आपके पास है? प्रोसेसिंग यूनिट हमारा अपना है। इसके अलावा जो जैम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जैम्स, जिसमें मलबरी जैम है, बिही जैम है, एप्पल जैम है और मिक्सड फ्रूट जैम है, ये हम इसी अपने खनमा यूनिट में ही प्रोसेस करके इसका रॉ मटेरियल हम यहाँ पर प्रोक्योर करते हैं और फिर डिफरेंट मार्केट्स में हम इसकी मार्केटिंग भी करते हैं। ये हो गया ना एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट। साथ में यही इसका मतलब है कि एक तो मैन्युफैक्चरिंग भी हम करते हैं जो हमारा कैटल फीड प्लांट है, और प्रोसेसिंग भी करते हैं जिसमें हनी और ये फूड प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमर को। मंजूर साहब, अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे आज़ादपुर मंडी में जो आपका कोल्ड स्टोरेज है, ये कमीशन हुआ है मेरी इत्तला के मुताबिक 1975 में, बहुत पुराना है। बहुत पुराना है। और मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि इट्स बैडली इन नीड ऑफ सम रिपेयर्स। तो उस सिलसिले में क्या? जी हाँ, उसमें रिनोवेशन का काम चल रहा है। वो हमारा 35 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट है आज़ादपुर मंडी में। एक्चुअली वो मंडी में नहीं है, वो है लॉरेंस रोड पर जी। आज़ादपुर के बिल्कुल साथ में है एक एरिया है, लॉरेंस रोड इंडस्ट्रियल एरिया है। तो वहां पर हम एक एडिशनल फैसिलिटी प्रोवाइड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इसी कोल्ड स्टोर के लिए, और जो हमारा एग्जिस्टिंग यूनिट है, एग्जिस्टिंग एसेट है, उसको हम रिनोवेट कर रहे हैं। ये 35 करोड़ का प्रोजेक्ट है और इस साल के आखिर तक उम्मीद है इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा, और या तो इसी साल के आखिर तक ये कमीशन हो जाएगा या इंशाल्लाह अगले साल के शुरू में ही इसकी कमीशन। उस कोल्ड स्टोर में मुझे लगता है कि आज़ादपुर मंडी में जो मेवा बेचते हैं हमारे लोग,
उन्हीं का माल रहता इसका होगा। अल्टीमेट बेनिफिशियरी कश्मीर का ही फूड जो ग्रोवर है, फार्मर है, जो अपना माल आजादपुर मंडी में बेचता है, उसको यहाँ स्टोरेज के लिए, क्योंकि यहां से जब एक ही बार में आपका प्रोडक्ट जाता है मंडी में तो वहां पर सैचुरेशन हो जाती है। true. उस माल को, उस प्रोडक्ट को विदहोल्ड करने के लिए आपको एक स्पेस चाहिए, एक फैसिलिटी चाहिए, जो कॉर्पोरेशन प्रोवाइड करती है। और इंशाल्लाह एक अपग्रेडेड जो हमारा वो कोल्ड स्टोर है और एक एडिशनल फैसिलिटी हम वहां पर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, और मैंने ये पहले ही बताया कि इस साल के आखिर तक उसकी कमीशनिंग हो जाएगी। सर पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स की सप्लाई में आपका कुछ है? जी नहीं, पेस्टिसाइड और जो फर्टिलाइजर्स हैं उसमें कॉर्पोरेशन का कोई रोल नहीं है। वो चूंकि सारा जो निज़ाम है वो प्राइवेटाइज हो गया है, और प्राइवेट डीलर्स ही चाहे पेस्टिसाइड्स भी डील करते हैं और या फर्टिलाइजर्स, क्योंकि उसका एक अलग निज़ाम है जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उसका कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, तो कॉर्पोरेशन उसमें इन्वॉल्व नहीं है। सर चुनांचे आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अब जब इंडस्ट्री का नाम आता है तो आदमी समझता है कि आप एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्री के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स जो हैं, ट्रैक्टर है, ट्रॉलीज हैं, या बाकी जो इनको चाहिए खेती बाड़ी के लिए, वो बनाते होंगे या सप्लाई करते होंगे। तो इसमें ये सवाल आता है कि क्या एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ हैं यूथ के लिए, कुछ एंटरप्रेन्योरियल स्कीम्स जो आप देते हैं? जिन स्कीम्स की आप बात करते हैं, यानी सब्सिडाइज्ड रेट्स पर एग्रीकल्चर मशीनरी को प्रोवाइड करना, ताकि एक यूथ जो है वो इसमें अपना कैरियर डोले, तो वो कॉर्पोरेशन का मैंडेट नहीं है सब्सिडी प्रोवाइड करना। हम एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, चाहे कोई भी किसान हो या कोई भी एंटरप्रेन्योर हो, वो हमारी कॉर्पोरेशन के जरिए से प्रोक्योर करता है। हमने एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है, तो सब्सिडी कंपोनेंट जो है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का मैंडेट है। हम किसी भी तरीके से कोई सब्सिडी किसी भी शख्स को फराहम नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारा मैंडेट नहीं है। हाँ, हम उस सब्सिडी के लिंकेज के तहत उनको जो मशीनरी चाहिए वो हम प्रोवाइड करते हैं। सर जब एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड हैं, जैसे एक है कल्टीवेशन या हार्वेस्टिंग, इसके अलावा है आप दूसरा शोबा इसका जो है शीप रेयरिंग एंड गोट या कैटल, या इसके अलावा है पोल्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर। तो इन एरियाज में आप किस तरह से किसानों की हेल्प करते हैं? जैसे चिकन रेयरिंग किसी को करनी है, कोई पोल्ट्री फार्म क्रिएट करेगा? नहीं, एनिमल हस्बेंड्री और शीप हस्बेंड्री में हम इन्वॉल्व नहीं हैं। उनके साथ जो वो जो मशीनरी है या जो इनपुट्स है नॉर्मली हम वो प्रोवाइड नहीं करते। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर के रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी है, हमारा उसमें पूरा पार्टिसिपेशन है और इन्वॉल्वमेंट है। जैसे उसका मकसद ही यही है कि ये फार्मर को हम फैसिलिटेट करें, ताकि उसको 10 जगहों पर नहीं जाना पड़ेगा। अगर उसको ये मशीनरी, ट्रैक्टर लेना है, टिलर लेना है, स्प्रे पंप लेना है, कुछ भी लेना है, वो एक ही जगह पर हमारा लाल मंडी में या तालाब तुल्लू जम्मू में हमारे एग्री मॉल्स हैं, उन एग्री मॉल्स पर वो ले सकते हैं जो कोई भी मटेरियल उनको चाहिए। यहाँ है शोरूम इस तरह की? यहाँ शोरूम हमारा लाल मंडी में भी है और तालाब तिल्लो जम्मू में भी है। अब जब मैं ये कह रहा था कि आजकल, अभी पिछले कुछ दिन पहले पैडी की ये बुवाई कर रहे थे, अब हमने देखा खेतों में आजकल खुद मैनली ही करते हैं वो। हाँ, जो ट्रांसप्लांटेशन है पैडी की वो मैनुअली करते हैं, लेकिन यहाँ पर मशीनें हैं एक्चुअली इसके लिए। मैकेनाइज्ड ट्रांसप्लांटेशन कश्मीर में नहीं होती है। उसके लिए जरूरी है कि जो लैंड होल्डिंग का साइज है वो बहुत बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर लैंड होल्डिंग का साइज एक तो छोटा है, दूसरा कि यहाँ पर टेरेन भी वो अलाउ नहीं करता। आपने देखा होगा जो कंडी एरियाज हैं वहां पर टेरेसेस में जो फील्ड्स हैं, तो वहां पर वो मैकेनाइज्ड ट्रांसप्लांटर जो है वो इस काम नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पर मैनुअल ही ट्रांसप्लांटेशन होती है। वी हैव अ कॉल ऑनलाइन सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अपना तारुफ दीजिए साहब। सर मेरा नाम जावेद अहमद है, फ्रॉम त्राल। जी पूछिए। जी मैं सर से पूछना चाहता हूँ कि हमारे त्राल में फ्लोरिकल्चर का जो भी अभी सेक्टर लॉन्च हुआ है, उस बारे में हमारा जो सब्सिडी वाला लोन कहाँ से, क्या कुछ हमें उसके बारे में हमें मिलेगी कोई इंफॉर्मेशन सर? जी सर। हाँ, जो कमर्शियल फ्लोरिकल्चर के हवाले से फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट की पास एक स्कीम है, वो MIDH
کے تحت، تو اس میں ہم کامرشل فلوریکلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے ڈفرینٹ انسینٹیوز دیتے ہیں. چاہے وہ سب سے پہلا جو اس فارمر کو چاہیے ہوتا ہے وہ ہے نالج. تو نالج کے تحت ہم ان کو ٹریننگ دیتے ہیں جو بھی کامرشل فلوریکلچر میں اپنا کیریئر بنانا چاہتا ہے. نمبر 1 ہم ٹریننگ دیتے ہیں، ان کو ایکسپوجر وزٹس کرواتے ہیں، اور دوسرا جو ان کو چاہیے میٹیریل، سب سے پہلے جو امپورٹنٹ میٹیریل ہے وہ ہے ایک گرین ہاؤس، تاکہ پروٹیکٹڈ کلٹیویشن ہو سکے. کیونکہ جو یہ پھول ہیں، فلورل جو کمرشل فلوریکلچر کی جو یہ ہوتی ہے ایکٹیویٹی، یہ یوزولی کنٹرول ایٹماسفیئر میں ہونی چاہیے. اس کی شیلڈنگ جب بنتی ہے تو اس میں ونٹر میں بھی یہ ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں، اور جو گرمی کا موسم ہے اس میں بھی کر سکتے ہیں. تو اس میں ہم ان کو پالی ہاؤسز پرووائڈ کرتے ہیں، جو بھی اس میں جو سینٹرلی اسپانسر اسکیم ہے اس کے تحت جو نارمز ہیں، ان نارمز کے تحت ہم ان کو وہ سبسڈی کمپوننٹ پرووائڈ کرتے ہیں. باقی جو ٹریننگ کا کمپوننٹ پرووائڈ کرتے ہیں، یا جو سیڈز ان کو چاہیے، سیڈز بھی ان کو ہم سبسڈائزڈ ریٹس پر پرووائڈ کرتے ہیں. سر ہم کلٹیویشن کے بعد ہم آتے ہیں ہارویسٹنگ پہ، جو الٹیمیٹلی ہوتا ہے کسی بھی کھیتی کے لیے. تو ہارویسٹنگ کے لیے بھی مشینیں ہوتی ہیں، ہم تو یہاں مینولی ہارویسٹنگ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پنجاب میں یا باقی جو سٹیٹس ہیں، ہریانہ ہے، وہاں پر میکنائزڈ ہارویسٹرز ہوتے ہیں. تو ان ہارویسٹرز کے ذریعے ہی پیڈی کی ہارویسٹنگ ہوتی ہے یا ویٹ کی ہارویسٹنگ یوزولی ہوتی ہے. لیکن یہاں پر وہ ہارویسٹرز استعمال نہیں ہوتے ہیں. یہاں پر ٹیریسنگ، ایک تو وہ جو لینڈ کا جو ٹرین ہے ویسا ہے کہ اس پر ہارویسٹر نہیں چلے گا، اور دوسرا جو لینڈ ہولڈنگ کا سائز ہے وہ بھی ویسا نہیں ہے کہ وہ اس میکنائزڈ ہارویسٹنگ کو الاؤ کرے گا. میکنائزڈ کے لیے چاہیے کئی ہیکٹرز کا بڑے کھیت چاہیے. ہمارے پاس تو یہاں پر لینڈ ہولڈنگ کا سائز کم ہے. جی سر، یہ جو ملک پلانٹس وغیرہ ہوتے ہیں ان میں آپ کا کوئی کنٹریبیوشن؟ جی نہیں، ہم جو ملک پروسیسنگ پلانٹ جو یہاں پر ملک فیڈریشن کا ہے، چشمہ شاہی میں یونٹ ہے ان کا، لیکن ہمارا اس میں کوئی رول نہیں. اب پرائیویٹلی بھی کافی لوگوں نے اسٹیبلش کیے ہیں. پرائیویٹ جو انٹرپرنرس ہیں ان کے بھی یہاں پر ملک پروسیسنگ پلانٹس ہیں، لیکن جو ایگرو انڈسٹریز کارپوریشن ہے ان کا کوئی بھی ایسا پروسیسنگ یونٹ نہیں ہے. کسانوں کو پریفیب دیتے ہیں؟ پریفیب سٹرکچرز دیتے ہیں. جیسے اس سال HADP میں جو ہائی ٹیک پالی ہاؤسز فارمر کو دینے تھے، اس کی سبسڈی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے فراہم کی، لیکن ہم نے اس پروجیکٹ کی ایگزیکیوشن کی. تو جو فارمر کو وہ خود ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتا، اس کو کنسٹرکٹ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس وہ ٹیکنیکل نو ہاؤ نہیں ہے، تو کارپوریشن نے ہی جتنے بھی یہاں پر ہائی ٹیک پالی ہاؤسز جو کسانوں کو بنانے تھے وہ کارپوریشن نے ہی ان کو بنا کے دیے. سر یہ جو سیریکلچر ہمارا ہے یہ بھی ایگریکلچر ایکٹیویٹی کا ایک حصہ ہے. ایگریکلچر سے کرتے ہیں یہ، اس کو بھی ایک اس کا بھی ایک فیلڈ ہے، جیسے ایپیکلچر ہے، ایگریکلچر ہے، ہارٹیکلچر ہے، اسی طرح سیریکلچر بھی ہے. اب سیریکلچر میں کوئی آج کل لیٹسٹ مشینری انڈیوس ہوئی ہے؟ میں سیریکلچر ڈپارٹمنٹ کو اس وقت ہیڈ نہیں کرتا ہوں، اس لیے میں اس بارے میں نہیں، میں جیسے کہ آپ انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کو کرتے ہیں، ایگرو انڈسٹریز کو، تو اس لیے میں سوچتا ہوں آپ وہاں کے ہیڈ بھی رہے ہیں. میں رہا ہوں، اس وقت نہیں ہوں، اس لیے میرا وہ حد اختیار میں نہیں ہے. میں اس محکمے کے بارے میں کوئی بھی ڈسکشن میں. اچھا، پوسٹ ہارویسٹ انفراسٹرکچر کے بارے میں کچھ مدد کرتے ہیں؟ پوسٹ ہارویسٹ یہی کولڈ سٹورز ہیں. اس میں تو جو ہارویسٹ کر کے فارمر نے چاہے اپنا فروٹ لیا، چاہے پوٹیٹو لیا، چاہے اونین لیا، چاہے ٹماٹر لیا، وہ ان کولڈ سٹورز میں پرزرو ہو سکتا ہے تب تک کے لیے جب تک اس کو مارکیٹ فیزیبل نہیں ہوگا. سوٹیبل مارکیٹ جب اس کو رہے گا پھر وہ وہاں سے نکال کے مارکیٹ میں بیچے گا. کتنی دیر تک وہ لگ سکتا ہے کولڈ سٹوریج میں؟ نارملی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کراپ پر. جیسے اگر آپ کے پاس ایپل ہے، اس کو ہم سی سٹور میں 3 مہینے، 4 مہینے، 5 مہینے بھی رکھ سکتے ہیں. تو کولڈ سٹور میں یہ تھوڑا کم رہتا ہے اس سے، کیونکہ کولڈ سٹور اور کنٹرولڈ ایٹماسفیئر سٹور کی اسپیسیفیکیشنز الگ الگ ہیں. تو اس میں ایک ٹائم ہے جس میں جب وہ ایک ٹائم فریم اس کا ہے اور اس کا الگ ٹائم فریم ہے. اچھا، JNK میں آپ نے کوئی کیٹل فیڈ پلانٹ قائم کیا ہے جہاں ISI مارک کا؟ جی ہاں، وہ JNK میں واحد کیٹل فیڈ پلانٹ ہے جو ISI مارک، جو ہم کیٹل فیڈ بناتے ہیں اس کو ISI مارک. جی ہاں، کیٹل فیڈ جو پیلٹس بنتے ہیں وہ ایگرو فیڈ کے نام سے وہ مشہور ہے. تو وہ یہاں پر JNK میں واحد جو ہے ISI مارک کیٹل فیڈ ہے. اچھا سر، یہ جو آپ کی انڈسٹریز ہیں
کچھ ایسی ہماری انڈسٹریز ہیں یہاں جو پیسٹیسائڈس اور یہ جو فرٹیلائزرز وغیرہ یہ پروڈیوس کرتے ہوں، خود بناتے ہوں؟ کیونکہ کافی شکایتیں آتی ہیں آج کے دن میں اس کے بھی. بارے میں تو میں کوئی کیونکہ یہ میرے مینڈیٹ میں نہیں ہے. جو پیسٹیسائڈس یا فرٹیلائزرز اس کے ساتھ تو میرا کوئی سر انڈسٹریز ڈیولپمنٹ جب آتا ہے ذہن میں تو نیچرلی کچھ ایگرو ریلیٹڈ انڈسٹریز ڈیولپ کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں وہ انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کا مینڈیٹ ہے، میرا نہیں ہے. جی وی ہیو اے کال آن لائن. ہیلو 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 جی ڈراپ ہو گئی کال. تو کیونکہ یہ جو پیسٹیسائڈس کا آج کل یہ ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں کسان کے صاحب آج بھی ہمیں کئی جگہوں پر ہیلو ہیلو جی ہاں جی 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 بٹ صاحب بول رہے ہیں. میں ٹی وی سامنے نہیں ہے، میں باہر ہوں تو بھی میں آئی ایم واچنگ دس ٹی وی باہری، مگر میں ڈائریکٹر صاحب کو سن رہا ہوں. ہاں کشمیر تو ہمارا اٹ از دا کنگ آف گارڈن. فلوریکلچر ڈپارٹمنٹ جو ہے، ہم تو کشمیر تو قسمت والے ہیں، ہمارا کشمیری باغوں کا بادشاہ ہے. مگر یہ میں کہنا چاہتا ہوں آئی لو دس فلوریکلچر سبجیکٹ. ہم تو یہ ٹولپ گارڈنز وہاں کیے ہیں، بہت لولی ہے. واٹ سیٹ بڑا میں نے نہیں دیکھا مگر بولے شاندار ہے. مگر ایک چیز ہے جو ورائٹیز ہے ڈفرنٹ ان ادر کنٹریز، اگر ہم ان کا ہم یوٹیلائز کریں گے ورائٹیز تو اٹ ول بیکم اٹ از آلریڈی اور کشمیر از بیوٹی اینڈ لنڈن. بٹ میں کہتا ہوں یہ خوبصورت ہے، چار چاند جنت ہی بن جاتا ہے اگر کوئی ورائٹیز آر دیئر ویری مچ in foreign countries, Switzerland, وہ بھی varieties کرتے. tourism will flow very much sir. If it could be tried these varieties and باغوں میں بھی اگر لوگ کریں گے اپنے کچن گارڈن میں it will become a lovely and it's a good thing and the business is going on. The young جو unemployed ہے they can also utilize and earn money. Thank you sir very much. جی فلور کلچر کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے اکبر صاحب. ٹولپ کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا کہ میں نے ایک فارنر سے پوچھا یہاں کے ٹولپس کے بارے میں ٹولپ گارڈن میں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہاں بھی ہالینڈ میں یا باقی جگہوں پر ٹولپس ہیں لیکن یہاں کے ٹولپس میں کلر بڑے برائٹ ہیں. دیکھیے جو یہاں پر ٹولپ گارڈن ہے، اپریل کے مہینے میں یہ بلوم اس کا شروع ہو جاتا ہے، 1 مہینے تک اس کا بلوم رہتا ہے. تو ایشیا کا سب سے بڑا ٹولپ گارڈن یہاں پر ہے کشمیر میں. اس میں لگ بھگ 60 سے زیادہ ویرائٹیز جو ٹولپس کی وہ کلٹیویٹ ہوتی ہیں. تو اس سال اگر میں بتاؤں آپ کو اس سال کی فیگرز 4.5 لاکھ ٹورسٹس نے اس گارڈن میں انٹری لی ہے اور جو یہ نظارہ ہے اسے لطف اندوز ہو گئے وہ 1 مہینے کے اندر، کیونکہ یہ بلوم صرف 1 مہینہ رہتا ہے. تو 4.5 لاکھ ٹورسٹس 1 مہینے میں کسی جگہ پر وزٹ کرنا یہ ایک بہت ہی اچھا شگون ہے. تو ہمارا مقصد جو فلوریکلچر ڈپارٹمنٹ کا یہ گارڈن کو پروموٹ کرنے کا ہے کہ ہم ایکچولی ٹورزم سیکٹر کو، جو ٹورزم انڈسٹری ہے، ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے، اس کو ہم کمپلیمنٹ کرتے ہیں تاکہ جو یہاں پر ٹورسٹ سیزن تھا وہ یوجولی مئی سے شروع ہوتا تھا. مئی سے یہ ٹورسٹز یہاں پر آنا شروع ہوتے تھے، لیکن اس ٹولپ گارڈن کی وجہ سے 1 مہینہ پری پون ہو گیا ٹورسٹز کا آنا. تو آپ نے دیکھا ہوگا اپریل کے مہینے میں ہی یہاں پر ٹورسٹز کا بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور ان کا مین جو اٹریکشن ہے وہ یہی ٹولپ گارڈن ہوتا ہے. اور جب یہ ٹولپ شو ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد امیڈیٹلی جو ہمارے باقی گارڈنز ہیں، جو بھی مغل گارڈنز ہیں، چاہے چشمہ شاہی ہے، نشاط ہے، شالیمار ہے، پری محل ہے تو یا ہارون ہے، وہ کھلتے ہیں. تو وہ ان میں پھر وہ جو پھولوں کا بلوم شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو اس کے بعد ٹورسٹس کا رش ہوتا ہے وہ ان کی طرف چلا ڈائیورٹ جاتا ہوتا ہے. تو جو ٹولپ گارڈن ہے وہ اس کے بعد ٹولپ بلوم کے بعد وہ بند ہو جاتا ہے، وہ بند کر دیا جاتا ہے. سر یو آر دا آتھورائزڈ ڈسٹریبیوٹرز آف نیشنل سیڈ؟ نو، نہیں. آپ کی سائٹ سے تو یہی پتا چلا؟ نہیں، سیڈ جو سپلائیز ہے وہ نیشنل سیڈ کارپوریشن جو ہے وہ ایک الگ آرگنائزیشن ہے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی بھی ریلیشن نہیں ہے. کیونکہ کل جب میں اس کے بارے میں دیکھ رہا تھا تو وہاں آ گیا کہ یو آر دا آتھورائزڈ ڈسٹریبیوٹرز آف نیشنل سیڈ.
मैं इसलिए सोच रहा था क्योंकि हमारा स्कॉस भी सीड डिस्ट्रीब्यूट करता है एंड हाई क्वालिटी सीड। स्कॉस जो है वो सीड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, बल्कि वो सीड को प्रोड्यूस करते हैं, वो फाउंडेशन सीड बनाते हैं वहां पर, फिर उसकी मल्टीप्लिकेशन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अपने सीड फार्मर्स में करता है, और फिर वही सीड जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट प्रोड्यूस करता है वो फिर फार्मर को प्रोवाइड किया जाता है। ये जो आजकल हाई डेंसिटी एप्पल के बारे में काफी कहा जाता है कि इसको कल्टीवेट कीजिए और इसको प्रमोट किया जा रहा है, आपको कोई रोल बनता है? हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का मैंडेट है, क्योंकि उसमें भी पहले मेटेलिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। जी हाँ, उसके बाद ही वो उसमें सब्सिडी कंपोनेंट जो है वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है। उनके अपने ये जो वेंडर्स हैं जिनके जरिए वो ये काम करते हैं, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, वो उनके जरिए उनको उसका कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो वही वो काम करते हैं। कॉरपोरेशन का उसमें कोई रोल नहीं है। सर मुझे लगता है इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन को होना चाहिए इसमें। वो चूंकि एक इंडस्ट्री नहीं है, वो एक प्लांट करने का एक प्रोसीजर है, तो उसमें कॉरपोरेशन के पास इतना मैन पावर नहीं है कि हम उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि उसमें पहले रूट स्टॉक को लाना है, मल्टीप्लाई करना है, एक जो पी को फैसिलिटी क्रिएट करनी है, फिर फार्मर्स के उनमें ऑर्चर्ड्स में उसको, वो एक लंबी चौड़ी एक्टिविटी है, उसमें कॉरपोरेशन की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सर वी हैव अ कॉल ऑनलाइन। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं अर्ज जमीन 4 कनाल اہن حظ تو मिलित تُہۍ کیٛاہ چھِو تَتھ یژھان بناوُن؟ پوش مطلب تُہۍ کتہِ حظ پٮ۪ٹھ چھِو بولان؟ سورت شہر پہ بڈگامہِ پٮ۪ٹھ۔ اوکے، بڈگامہِ چھُ سون ڈسٹرکٹ فلوریکلچر آفیسر، تمن سۭتۍ کٔرِو تُہۍ رٲبطہٕ قٲیِم، تِم کرن تۄہہِ اتھ بارس منٛز گایڈنس تہِ یہِ فراہم۔ بیٚیہِ یُس زن تُہۍ ونان چھِو کہ سبسڈی، یا اگر تُہۍ یژھان چھِو تِہنٛز گایڈنس کہ تُہۍ کمہِ قٕسمٕچ کلٹِویشن کٔرِو کمرشل فلوریکلچرس منٛز، کیٛاہ روزِ تُہنٛدِ خٲطرٕ جان، سُہ دِیو تۄہہِ یہِ سپاٹ وِزٹہِ پتہٕ ہیٚکیو تۄہہِ سُہ مزید امِچ زانکٲری دِتھ۔ چلو چلو ٹھیک۔ سر آپ کا بڑا امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ جس کے آپ ہیڈ ہیں، سربراہ ہیں، وہ ہے فلوریکلچر۔ تھوڑی دیر پہلے بٹ صاحب نے دلی سے جو فون کر رہے تھے تو انہوں نے ٹولپ گارڈن کے بارے میں ذکر چھیڑا، تو اب ہم بھی فلوریکلچر پہ آتے ہیں۔ کتنے گارڈنز آپ کے انڈر ہیں ابھی؟ کشمیر، چونکہ یہ جو ڈائریکٹوریٹ آف فلوریکلچر وہ کشمیر ڈویژن کے لیے مخصوص ہے، تو جموں میں الگ ڈائریکٹوریٹ ہے، تو یہاں پر کشمیر میں ہمارے پاس 119 گارڈنز ہیں سارے اضلاع میں، پورے کشمیر ویلی میں، جن کو ہم مینیج کرتے ہیں اور جن کی ہم شو کیسنگ کرتے ہیں، اور بہت ساری جگہوں پر جو انٹری ہے وہ ٹکٹ کے ذریعے ہوتی ہے۔ جیسے یہاں پر کچھ گارڈنز جو تھے وہ جموں کشمیر بینک مینیج کرتی تھی، لیکن پھر کچھ سال پہلے وہ فلوریکلچر ڈپارٹمنٹ کو واپس دیے گئے۔ وہ پہلے بھی فلوریکلچر ڈپارٹمنٹ کے پاس ہی تھے، پھر ان کو جموں کشمیر بینک نے مینیج کرنا شروع کیا، لیکن اب وہ فلوریکلچر ڈپارٹمنٹ کے پاس ہیں ابھی۔ جیسے یہاں پر ہماری اقبال پارک ہے، بارہمولہ میں گلنار پارک تھی، پہلگام میں وہ امیوزمنٹ پارک جو تھی وہ کے پاس تھی، ابھی وہ ساری جو پارکس ہیں وہ فلوریکلچر ڈپارٹمنٹ مینیج کرتا ہے۔ امیوزمنٹ پارک پہلگام کے آپ کے پاس ہے؟ جی۔ اس کا انفراسٹرکچر جو بینک نے، وہ ہم رینوویٹ کرنے والے ہیں، اس پر کام چل رہا ہے، تو ابھی وہ جو اس میں وہ مشینیں وغیرہ لگی تھی وہ ابھی نہیں کام کر رہی ہے۔ سر یہ جو ٹکٹنگ کی ذکر آپ نے چھیڑی کہ یہ ٹکٹنگ کا سلسلہ جو ابھی آؤٹ سورس ہی ہے یا خود کرتے ہیں آپ؟ یہ جتنی بھی ٹکٹنگ جو ہے ان کی گارڈنز کی وہ آؤٹ سورسڈ ہے، کانٹریکٹر کے ذریعے ہی وہ ساری جو وہاں پر انٹری کو مینیج کیا جاتا ہے، کیونکہ ڈپارٹمنٹ کے پاس یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم ساری جو پارکس میں خود ہی انٹری کو مینیج کریں گے، تو بیٹر ہے کہ اس کو آؤٹ سورس کیا جائے۔ گورنمنٹ کی وہ انسٹرکشنز ہیں تو اسی کو ہم فالو کر رہے ہیں۔ کہ پروسیس کیا ہے اس کا آؤٹ سورسنگ کا؟ اس کی پراپر اوپن ٹینڈرنگ ہوتی ہے، ای ٹینڈرنگ ہوتی ہے اس کی، اور جو ہائیسٹ بیڈر ہوتا ہے اس میں وہی اس کا جو پھر بعد میں کانٹریکٹ لیتا ہے۔ ایک ہی ٹائم ہوتا ہے یا الگ الگ ٹائم؟ ہر سال ہوتا ہے یہ۔ نہیں، ہر سال تو ہوگا، ایک ہی ٹائم پہ ہوتا ہے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے ایک ہی بار میں ہوگا، اس کی الگ الگ اپنا شیڈول ہے، اپنا ڈفرنٹ گارڈنز کے لیے آپ کرتے ہوں گے۔ جیسے ہم ٹیولپ گارڈن کا 1 سال کا جو کانٹریکٹ ہے وہ ہم پہلے ہی کر کے رکھتے ہیں، جیسے سپٹمبر، اکتوبر یا نومبر میں،
تو پھر وہ اپریل سے کام شروع کرتا ہے. ٹولپ گارڈن بھی اس سال کے لیے بھی آؤٹ سورس تھا؟ جی ہاں، وہ ہر سال آؤٹ سورس ہی ہوتا ہے. جی جی تو 4.5 لاکھ وزٹرز کو مینیج کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس لیے یہ جو کانٹریکٹر ہے وہی اس کو مینیج کرتا ہے. اس سے ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس سے امپلائمنٹ جنریشن بھی ہو جاتی ہے. جی کتنا ریونیو کلیکشن رہا تھا آپ کے بعد؟ کچھ تو فگرز ہوں گے آپ کے اس میں اس کا ٹیولپ گارڈن کا جو ریونیو جنریشن ہے لگ بھگ 2.5 کروڑ روپیہ ایک سال کا اس میں آیا. صرف اتنے سارے لوگ ایک ہی مہینے کے لیے صرف ٹیولپ گارڈن کا 2.5 کروڑ روپیہ کا ریونیو آ گیا. 4 لاکھ ٹورسٹ وزٹ کیے تھے؟ جی ہاں. ٹکٹ اس نے 100 روپے رکھی تھی؟ نہیں، 70 روپے کا ٹکٹ ہے. جی بالغ کے لیے 70 روپے کا ٹکٹ ہے اور بچے کے لیے 30 روپے کا ٹکٹ ہے. سر فلوریکلچر کی جب بات کرتے ہیں تو اس کی ایک مارکیٹنگ بھی ہوتی ہے. کیا ہمارے پاس کوئی نیشنل انٹرنیشنل لیول کی فلوریکلچر مارکیٹنگ ہے؟ کوئی کرتا ہے اس کے ساتھ؟ میں اس کو تھوڑا ایلیبوریٹ کر کے بتاؤں گا. جی مارکیٹنگ صرف ہم پھولوں کی نہیں کرتے ہیں، بلکہ جو ہمارے پاس یہاں پر گارڈنز ہیں وہ سب کی مارکیٹنگ ہی ہوتی ہے. وہ جو یہ جو گارڈنز ہمارے مغل گارڈنز جن کو ہم شو کیس کرتے ہیں وہ تو کشمیر کی مارکیٹنگ ہے. جی وہ صرف فلوریکلچر کی مارکیٹنگ ٹورزم کے بینیفٹ کے لیے وہ ادھر کی پوری اکانومی کو سپلیمنٹ کرتی ہے. کیونکہ جو یہاں پر ٹورسٹ آتا ہے وہ موسٹلی آپ دیکھتے ہوں گے چشمہ شاہی میں، پہلگام کی پارکس میں، نشاد باغ میں، شالیمار باغ میں، وہ وہاں پر اس کو انجوائے کرتے ہیں. جی کیونکہ یہ ایک اٹریکشن کا ذریعہ ہے اور اس سے کشمیر کا جو پورا ایک وہ کلائمیٹ ہے، ادھر کا جو پورا سینیریو ہے اس کی مارکیٹنگ ہوتی ہے. تو جو فلوریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے یہ تو کشمیر کا ہی ایک جو مارکیٹنگ پلیٹ فارم ہے. جی جہاں پر ہم پورے کشمیر کو شوکیس کرتے ہیں. وہ کوئی سے بھی ڈسٹرکٹ میں ہو، چاہے پلوامہ میں ہے، چاہے اننت ناگ میں ہے، چاہے پہلگام میں ہے، چاہے یہاں پر سری نگر میں ہے. جی وہ کال آن لائن سے. ہلو ہلو. جی ہلو. اپنا تعارف دیجیے صاحب. کون صاحب کہاں سے؟ جی میں اقبال رشید بول رہا ہوں. جی رشید صاحب فرمائیے. راج باغ سے بول رہا ہوں. پوچھیے سوال. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں جی اقبال رشید بول رہا ہوں، راج باغ سے بول رہا ہوں. جی سوال پوچھیے اپنا اقبال صاحب. سر ایسا تھا کہ لاسٹ جو بہت اچھا جو ہے نا ریور بینکس کا تھا نا، بڑی اچھی ان کی ڈیکوریشن ہو گئی تھی. فلوریکلچر میں لیا تھا وہ بینک ریور جائلنگ یا نہیں لیا تھا وہ ہم کوئی جانکاری نہیں ہے، لیکن بہت ہی خوبصورت بنایا تھا جی لاسٹ ایئر انہوں نے. تو دیٹ ریئلی ایڈیڈ ٹو دا بیوٹی آف دا سٹی، اسپیشلی جو ہمارے ٹورسٹ وغیرہ آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں وہاں پر جو ہمارا وہ کسی یورپین طرز پر بنایا تھا انہوں نے. تو اس سال جو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جو بھی فلاورنگ بیڈس تھے وہ بالکل بیرن ہے اور دے آر ناٹ ایڈنگ بٹ دے آر ریئلی ایکچولی میکنگ اٹ ورسٹ. تو یہ میں چاہتا ہوں کہ اگر فلوریکلچر ڈپارٹمنٹ نے یہ لیا ہے اپنی تحویل میں یہ پارکنگ وغیرہ جو پارکس ہے، تو اگر وہ نہیں لیا ہے تو وہ بھی لے لیں. تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ یہاں پر جتنے بھی ہمارے ٹورسٹ آتے ہیں تو ان کی پہلی نظر سری نگر پہ ہے، اس پہ پڑتی ہے جی وہ ریور جائلنگ کا جو بینک ہے جی. تو اس میں اس سال کوئی فلاورنگ نہیں تھی. پچھلے سال شاید G20 تھا یہاں پر، اس کی وجہ سے انہوں نے اس کی فلاورنگ بڑی اچھی کی تھی، بڑی اچھی بلوم تھا اس میں. آپ پرٹیکولر کس اسپاٹ کی بات کر رہے ہیں؟ بن چکے ہیں اس پہ فلاورنگ بیڈ، لیکن اس میں وہ خالی ہیں اور اس میں کچھ اچھے کچھ اس میں ویڈس ہیں. تو دیٹس ناٹ ایڈنگ ایٹ آل ٹو دا بیوٹی آف دا سٹی. سو اٹس مائی ریکویسٹ. رشید صاحب کس پرٹیکولر اسپاٹ کی بات کر رہے ہیں؟ ہلو سر، یہ بینک آف ریور جائلنگ جو ہے راج باغ سے جو ایئرپورٹ روڈ، یہ جو ریور فرنٹ کی بات اچھا ریور فرنٹ. جی ریور فرنٹ جی ریور فرنٹ جو ہے وہ فلوریکلچر ڈپارٹمنٹ مینیج نہیں کرتی ہے. وہ یا تو اس بارے میں مجھے لگتا ہے یا تو وہ سری نگر میونسپل کارپوریشن مینیج کرتی ہوگی یا جو اسمارٹ سٹی کا پروجیکٹ ہے وہ مینیج کرتے ہوں گے. فلوریکلچر ڈپارٹمنٹ اس کو مینیج نہیں کرتا. یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اس کو لے نہیں سکتے اپنے انڈر. وہ سرکار کے حد اختیار میں ہے. جو سرکار ہمیں کام کرنے کو کہے گی وہی ہم کریں گے. ابھی وہ ہمارے حد اختیار میں نہیں. سر میں تھوڑی دیر پہلے کمرشل فلوریکلچر کی بات کر رہا تھا تو آپ نے مجھے کہا کہ آپ پورے فلاورز کے ذریعے پورے کشمیر کو
प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन मेरा मतलब था कि आप बाहर जाइए कहीं तो आपको फ्लावर्स मिलते हैं मार्केट में, जितने भी फ्लावर्स आपको चाहिए। यहाँ ऐसा कुछ सिलसिला है नहीं। आपको पिछले कई सालों से लगता होगा कि श्रीनगर में, या जब आप श्रीनगर से बाहर जाते हैं, छोटे छोटे वो वेंडर्स जो सड़क के किनारे हैं, या यहाँ पर बहुत सारी दुकानें एस्टैब्लिश हो गई हैं जो ये फ्लावरिंग प्लांट्स बेचते हैं, चाहे पॉट्स में बेचते हैं या वो जो पॉली बैग्स में बेचते हैं। नहीं, वो तो प्लास्टिक के होते हैं कि नहीं, प्लास्टिक के नहीं, रियल जो ये लाइव प्लांट्स हैं। अच्छा। वो आपने देखे होंगे। ये एक नया ट्रेंड डेवलप हो गया है कि हर एक शख्स अपने लॉन में, चाहे छोटा है या बड़ा है, उसको एस्थेटिकली डेवलप करना चाहता है। नहीं, वो हो गया अलग से वो हो गया अपने लिए। हाँ। वो भी तो कमर्शियल फ्लोरिकल्चर का हिस्सा है कि लोगों को उससे रोजगार मिलता है। जब आप सीडलिंग लाते हैं किसी के दुकान से, तो उसके लिए मार्केटिंग हो गई ना। आप अपने घर में फ्लावर बेड बनाया है, जी। तो फ्लावर जो उसका सीडलिंग है वो तो लिया है कहीं। जी। उस सेक्टर को हम प्रमोट करते हैं, जो वो सेक्टर है जहां पर फ्लावर की प्लांट्स की कल्टीवेशन होती है, उसको भी डिपार्टमेंट प्रमोट करता है। और अल्टीमेटली आपका मकसद है जो बुकेज में ये फ्लावर्स आपको मिलेंगे, वो बुकेज की प्रिपरेशन कैसे होती है, उसकी मार्केटिंग कैसे होती है। तो उसके लिए जो मैंने पहले ही कहा कि MIDH एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसका मकसद ये है कि कमर्शियल फ्लोरिकल्चर को प्रमोट किया जाए। कमर्शियल फ्लोरिकल्चर का वो बुकेज का जो बनाने का एक निज़ाम है, वो जो बनाते हैं बुकेज, वो एक उसका कंपोनेंट है। जो आप अपने घर में एक लॉन डेवलप करते हैं, वो भी उसी कमर्शियल फ्लोरिकल्चर का हिस्सा है। नहीं, मैं उस बुके का, कट फ्लावर के इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आपने जब फ्लावर कट कर दिया, उसके बाद मार्केट तक ले जाने की मार्केटिंग होनी जरूरी है। फ्रेश होना चाहिए ना, वो फ्रेश मिलना चाहिए जहाँ। तो उसके लिए की भी आप नहीं करते। जो कमर्शियल फ्लोरिकल्चर है वो उसका हिस्सा है। कट फ्लावर्स को बनाना और फिर उनकी मार्केटिंग करना। उसके लिए जो हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं वो इस स्कीम को इंप्लीमेंट करते हैं। जो जितने भी ये इंसेंटिव्स हैं वो इन फार्मर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। हमारे यहाँ से ट्यूलिप एक्सपोर्ट नहीं होता इन द शेप ऑफ कट फ्लावर। नहीं, ट्यूलिप तो कट फ्लावर है ही नहीं, वो आपको वहीं पर मिलता है क्योंकि उसकी लाइफ ही इतनी नहीं होती है। अगर आपने उसको ले लिया निकाल के फिर उसको बुके में इस्तेमाल किया, तो वो आपने देखा होगा उसकी पैकेजिंग ऐसी हो कि वो यहाँ से अमेरिका चला जाए और वहाँ खोल के वो निकाले। ऐसा हो सकता है, अगर ये आपका आइडिया है, ये आपका ख्याल है, तो ऐसा अगर इस पर गौर किया जा सकता है और इस पर सोचा जा सकता है। जी सर, वी हैव अ कॉल ऑनलाइन। हेलो जी, वालेकुम सलाम। अपना तारुफ दीजिए, कौन साहब, कहाँ से? बड़गाम से बोल रहा हूँ। फरमाइए, पूछो सवाल। जनाब से घर में अच्छे प्राइवेट में पानी पार्क बनोमुत गरी पर्सनल पार्क बनोमुत तथ ड्रमन वदान वदान पे लोग तथ ड्रमस पे जमुद पार्क पार्क ब्लैक पार्क जब इलाज बेमार लगी पे गई फ्लोरिकल्चर वाले हॉर्टिकल्चर वाले एग्रीकल्चर वाले बेमार लगान बेमार कत लगान पोषण ड्रम। अच्छा, जो टर्फ को आप जमीन पर लगाते हैं उसमें बीमारी लगी है, इसके लिए अप्रोप्रिएट है। हमारा जो फ्लोरिकल्चर ऑफिसर वहां पर है, आप उससे राब्ता कीजिए। जो बड़गाम में फ्लोरिकल्चर ऑफिसर है, वही इसका जो रेमेडी है वो बता सकता है। ओके। लेकिन वो कहते हैं वो एग्रीकल्चर वाले के पास जाना। मैं इंश्योर करूंगा कि इसमें एक्शन होगा। आपने ये मेरी नोट्स में लाया, तो इसमें आपकी जो ग्रीवेंस है वो रिजॉल्व करेंगे। थैंक यू सर। ये जो गार्डन एस्टेब्लिश करने का एक सिलसिला है, एक नया कॉन्सेप्ट है हमारे लिए कश्मीर में है, बाकी यूरोप और बाकी डेवलप्ड कंट्रीज के लिए ये पुराना हो गया। टॉपियरी गार्डन्स, ओके। तो उनमें डिफरेंट, पहले में मेटलिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना होता है, किसी एलिफेंट का, किसी जिराफ का, किसी घोड़े का, उस पर वो फूलों की बेल चढ़ाते हैं।
तो ऐसी गार्डन उन्होंने बनाए हैं कि आदमी वहां अंदर जाके सीम्स इटसेल्फ इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। इस तरह का गार्डन अगर आप यहाँ बनाए तो जो अपने यहाँ पर जो नेहरू मेमोरियल बॉटनिकल गार्डन है उसमें मुझे लगता है आप गए होंगे, आपने जी मैं गया हूँ। वहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है कि ऐसी कुछ वहाँ पर जो वो मेटेलिक फ्रेम्स हैं वो लगाए गए हैं और फिर जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर वो कल्टीवेट हो जाते हैं, तो उनकी बिल्कुल शेप वैसी ही लगती है। तो ये आपने एक सजेशन दी है, एक आइडिया दिया है, तो कोशिश करेंगे कि हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे। अगर इसके लिए एक अलग थीम गार्डन हम बनाने की जरूरत है। आपका मतलब है कि एक अलग से एक गार्डन हो जिसमें सिर्फ ऐसे ही प्लांट्स हों। एग्जैक्टली दुबई में इस तरह के गार्डन हैं सर। सही है, इसको हम जो ये कॉन्सेप्ट है इसको ये इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। सर इंफ्रास्ट्रक्चर ये कट फ्लावर्स का जो मैं कह रहा था इसके लिए बनाने की जरूरत है, आप इस पर भी गौर कर सकते हैं। कट फ्लावर्स के लिए अलग कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनके लिए उसकी कल्टीवेशन के लिए ग्रीन हाउसेस की जरूरत है ताकि ऑफ सीजन में भी वो फ्लावर अवेलेबल रहेंगे जी। तो उसके लिए तो हमारे पास स्कीम ऑलरेडी है जिसका फायदा किसान यहाँ का ले रहा है। हमारे यहाँ पर आजकल आप जैसा आपने खुद भी जिक्र किया कि काफी लोगों ने फ्लोरल बिजनेस में शुरू किया है, सीडलिंग्स क्रिएट करने का। कुछ लोगों ने पॉली हाउसेस में बनाए हैं और बहुत सारी जगहों पर इस तरह के डल लेक के साइड पे आप देखेंगे साइडों पे वो कई सारे फ्लावर सेलर्स बैठे हैं जिन्होंने पॉली हाउसेस में ग्रो किए हैं। और यहाँ लाल चौक में भी फुटपाथ्स पे जगह जगह पर ये सीडलिंग्स आपने देखा होगा कि जो परता पार्क है, परता पार्क की जो नीचे वाला साइड है, जो रेजिडेंसी रोड का साइड है, उस पर वही आपको मिलेंगे जी। सो आप कोई इंसेंटिव देते हैं, एनकरेज करते हैं ऐसे लोगों को जो, या उनको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है आपके साथ? नहीं, उनको उनकी जो नर्सरी है, अगर कोई नर्सरी वाला होगा उसको हमारे पास रजिस्टर होने की जरूरत है। बाकी जो वेंडर है उसको वेंडर को रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई नर्सरी ऑपरेशंस में इन्वॉल्वड है तो उसको हमारा जो ऑफिस है, डायरेक्टरेट है, वहां पर उसको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है। तो बाद में आपकी तरफ से कोई गाइडेंस वगैरह मिलती है आपके लोग? सबसे बड़ा जो बेनिफिट जो इस किसान को होता है वो है नॉलेज के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। सपोज आपके पास लैंड भी है, आपके पास कैपिटल भी है, लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं है, आप कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले जो डिपार्टमेंट करता है कि इन लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करता है। स्किल डेवलपमेंट के लिए हमारा ज़्यादा फोकस रहता है, तो उसके लिए हम कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं यहाँ पर हर एक डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा जो एक्सपोजर विजिट्स, ताकि जो ये इसके जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, प्रोग्रेसिव ग्रोवर्स होते हैं इनके J&K से बाहर, वहां पर इनको ले जाके वो जो उनकी पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस है उनको वो समझाते हैं ताकि वो फिर यहां आके अपने खेतों में वो इंप्लीमेंट करेंगे और उनकी जो प्रोडक्शन है वो बेटर हो। कुछ नई वैरायटीज आपने इंट्रोड्यूस की हैं फ्लावर्स में यहां पर आपने देखा होगा कुछ जो यहां पर ओरिजिनल, जो यहां पर अपना जो फ्लोरा है उसमें तो एडिशन हो गया है। जो जैसे ट्यूलिप है, ट्यूलिप तो एक इंपोर्टेड ही वैरायटी है, वो तो बाहर से ही आता है, हॉलैंड से, वो हॉलैंड में ही मैक्सिमम उसकी प्रोडक्शन होती है। तो अब तो आप खुद बनाते हैं यहाँ पर हमारी अपनी भी बल्ब प्रोडक्शन फिर बाद में बंद होती है, लेकिन ओरिजिनल वो है हॉलैंड का, इसलिए तो वो इंपोर्टेड वैरायटी ही है। इसके अलावा हमारे कुछ और प्लांट्स हैं, जैसे रेननक्यूलस एक प्लांट है, उसमें एक बहुत ही खूबसूरत फूल निकलता है। एक पियोनिया है, उसका एक थीम गार्डन हमने पहलगाम में बनाया है पियोनिया का, वो भी एक बहुत ही खूबसूरत फूल है, अट्रैक्टिव फूल है, जो बल्ब से ही फिर उगता है वो प्लांट। क्योंकि यहाँ कश्मीर में एक लीन पीरियड आता है, समर के मतलब स्प्रिंग के बाद समर तक बीच में खालीपन सा रहता है फ्लावर्स के मामले में। नहीं, विंटर में एक खालीपन रहता है जी, क्योंकि हमारी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो उस हार्श होती हैं, टेम्परेचर सब जीरो होता है, इसलिए उस वक्त इन प्लांट्स को, क्योंकि जो फ्लावरिंग ये जो फूल देने वाला पौधा है ये बहुत ही नाजुक होता है, तो इसकी ग्रोथ है इस लीन पीरियड में इफेक्ट हो जाती है। तो मार्च के बाद तो यहाँ पर फिर आपको हर जगह फूल ही फूल देखने को मिलेंगे। क्लाइमेट ही हमारा वैसा है कि उसमें
जो बहुत ही कंजीनियल है इन फूलों की ग्रोथ के लिए। पहलगाम एरिया में आपने कोई, या गुलमर्ग एरिया में आपने कोई पार्क्स क्रिएट किए हैं? पहलगाम में तो हमारी ऑलरेडी पार्क्स हैं। ये जो मैंने आपको बताया, एक होगी वो थीम पार्क हमने एक बनाई है जिसमें सिर्फ पियोनिया के फ्लावर्स हैं। आप मेरी यही आपसे दरखास्त है कि आप वहां जाके उसका नज़ारा कीजिए। पियोनिया गार्डन अभी है उसमें थीम, हाँ वो अभी वो फूल उसमें है अवेलेबल। तो मतलब उसकी लाइफ क्या है? वो लगभग 2 महीने नहीं ज्यादा है उसकी लाइफ। एक क्रॉप उसका निकल के फिर दूसरा क्रॉप निकल आता है उसी में। वो थीम गार्डन हमने बहुत ही बड़ी पार्क में वही बनाया हुआ है, पियोनिया का ही। बाकी इसी तरह से गुलमर्ग में एक थीम गार्डन बना है क्रिजेंथेमम का। तो चूंकि गुलमर्ग में मैक्सिमम जो फ्लोरा वहां पर है वो वाइल्ड है, जैसे ल्यूपिन है, डिजिटालिस है, वो वहां पर खुद ही उगता है वाइल्ड। इसके अलावा हमने वहां पर एक क्रिजेंथेमम गार्डन बनाया हुआ है, तो वो भी एक टूरिस्ट्स की अट्रैक्शन है वहां पर। सर, ये जो आप कह रहे थे कि ये जो जिन्होंने नर्सरीज वगैरह कायम की है, इनको सीड वीड कोई देते हैं इस तरह क्या कि वो डिपार्टमेंट के पास जो भी रजू करेगा उसको हम सीड्स प्रोवाइड करते हैं। लेकिन आजकल फ्लोरिकल्चर सेक्टर में लोग प्रेफर करते हैं हाइब्रिड सीड्स। अब हाइब्रिड में यही प्रॉब्लम है कि उसको तो हमेशा आपने नर्सरी से ही लेना है, क्योंकि उसका कोई सीड बनता नहीं, उसका सीड नहीं बनता है। लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि उसको जो फ्लावर का साइज है वो बहुत बड़ा होता है, तो लोग अब प्रेफर करते हैं वही हाइब्रिड सीड्स। और डिपार्टमेंट के पास हाइब्रिड सीड नहीं होता, हमारे पास क्रॉस पॉलिनेटेड सीड्स होते हैं, तो वो हम प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर बॉटनिकल गार्डन के सामने हमारा एक आउटलेट है, और यहाँ पर पोलो ग्राउंड में भी हमारा एक आउटलेट है, सेल्स आउटलेट। किसी भी किस्म का जो फ्लावरिंग प्लांट अगर चाहिए वो वहां पर उसको मिलेगा, तो वो मखसूस रेट पर जो गवर्नमेंट ने नोटिफाइड की हुई है रेट्स। हर सीजन में उसको मिलता है, हर सीजन में वो उस सीजन के हिसाब से सीडलिंग्स भी मिलेंगे और पेरिनियल प्लांट्स भी मिल सकते हैं। अच्छा, ये जो आपका यहाँ अपने डायरेक्टरेट के पास एम्पोरियम गार्डन में, जी तो इसमें आपने डिफरेंट कुछ वैरायटीज लगाई हैं फूलों की? जो हाँ वहां पर तो हैं ही, क्योंकि फ्लोरिकल्चर डायरेक्टरेट जहां पर है नेचुरली वहां पर तो वैसा ही माहौल होना चाहिए, और है भी वैसा ही माहौल। तो इसको डेवलप करने के लिए, फर्दर इसको प्रमोट करने के लिए आपकी तरफ से किस तरह के एफर्ट्स हैं? जो मैंने पहले बताया कि सबसे पहला जो एक किसान को जरूरत है वो है स्किल की। स्किल डेवलपमेंट उसको सिर्फ फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट ही दे सकता है, क्योंकि बाहर अगर वो मार्केट में जाएगा तभी वो जाएगा जब उसके पास स्किल होगी। तो स्किल हम उसको देते हैं, नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। फिर जो हमारी ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है MIDH, उसमें फंड्स की अवेलेबिलिटी के तहत हम इंसेंटिव्स भी देते हैं जो आइडेंटिफाइड बेनिफिशियरीज हैं। स्कीम के तहत क्या देते हैं आप? स्कीम्स में क्या देते हैं आप? स्कीम में इनपुट्स भी देते हैं, चाहे मशीनरी हो या जो मैंने आपको बताया कि पॉलीग्रीन हाउसेस, जिसकी इस कमर्शियल फ्लोरिकल्चर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पॉलीग्रीन हाउसेस की, क्योंकि उसमें कंट्रोल्ड कल्टीवेशन के लिए पॉलीग्रीन हाउस का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर पॉसिबल नहीं है। हो सकता है, लेकिन एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में फिर वो कल्टीवेशन नहीं हो सकती, फिर वो सीजनल कल्टीवेशन हो सकती है। अगर आप ओपन कल्टीवेशन करते हैं तो फिर आप सिर्फ अप्रैल से सितंबर तक कल्टीवेशन कर सकते हैं। अगर आपको राउंड द ईयर कल्टीवेशन करनी है फिर आपके पास पॉलीग्रीन हाउस का होना जरूरी है। सर, आप फ्लोरिकल्चर के सरबराह हैं, मेरे जहन में मेरा पर्सनल एक मसला जहन में आ गया। जो हमारे यहाँ रोज़ होता था, जिसको हम कश्मीरी रोज़, कशर गुलाब थे इस वनान, काफ़ी सेंट उसमें होती थी, बड़ी महक होती थी। कि अब जो हमें रोज़ मिलता है मार्केट से या अगर खुद घरों में लगाते हैं उसमें कोई स्मेल ही नहीं होता। ये क्या? जो रोज़ है वो स्मेल के लिए नहीं उगाया जाता है। ये एक किसी चीज, एक ऑर्नामेंटल चीज है। अभी तक तो ऑर्नामेंटल ही रह गया। ऑर्नामेंटल पहले खुशबू होती थी सर, वो भी अवेलेबल है। अगर आप उसको कल्टीवेट करना चाहें तो वो भी अवेलेबल है। क्योंकि कस्टमर के पास वैरायटी होनी चाहिए, उसके पास चॉइस है, उसके पास चॉइस होनी चाहिए। आप वो वाला रोज कल्टीवेट करना चाहें, लेकिन उसमें आपको कांटे बहुत ज्यादा मिलते हैं। जो यहाँ पर जो एंडेमिक यहाँ का जो रोज है, जी, 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 उसमें आपको कांटे बहुत मिलेंगे।
फ्रेग्रेंस तो ऑफ कोर्स मिलेगी ही। जो अब आज जो ऑर्नामेंटल रोजेस हैं, इसमें एक तो वो बुश टाइप भी बनता है, दूसरा एक स्टैंडिंग रोज बनता है जी। स्टैंडिंग रोज भी होता है, नीचे उसका वो जो स्टेम है प्लांट का, और फिर उसका ऊपर एक गुच्छा बन जाता है जिसमें ब्रांचेस निकल के उन हर एक ब्रांच पर फिर फ्लावर्स आ जाते हैं। आपके वहाँ जो आउटलेट है, सेल्स आउटलेट बॉटिकल गार्डन के पर पास भी मिलते हैं, उसमें है ये जी अवेलेबल। स्टैंडिंग रोजेस भी आपको मिलेंगे, और जो ये एंडेमिक रोजेस हैं, जो हमारी यहाँ की, इसको जो नॉर्मली वो वाइल्ड रोजेस ही होता है, कल्टिवेटेड नहीं होता ज्यादा, वो भी आपको वहां मिलेगा। सर, कमिंग बैक टू एग्रो इंडस्ट्रीज, आपके मतलब डेवलपमेंट, आपके इमीडिएट प्लान्स क्या हैं अपने इस एरिया में, एग्रो इंडस्ट्रीज के एरिया में? एग्रो इंडस्ट्रीज में सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट जो इस वक्त जिस पर हम काम कर रहे हैं वो है प्रोसेसिंग यूनिट को रिनोवेट करना, क्योंकि जो हमारा खनमू में प्रोसेसिंग यूनिट है उसको हमने मॉडर्न लाइंस पर अपग्रेड किया है। अपग्रेडेशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग यूनिट, हनी प्रोसेसिंग यूनिट, एंड सेकेंडली सीडर ऑयल यूनिट, लेवेंडर ऑयल यूनिट, और कोल्ड स्टोर्स को, क्योंकि जो जम्मू में हमारा एक कोल्ड स्टोर बन रहा है 5,500 मीट्रिक टन का, श्रीनगर में हमारा कोल्ड स्टोर एक लाल मंडी में चल रहा है, चिनैनी में भी चल रहा है, और दिल्ली में एक कोल्ड स्टोर हम उसको रिनोवेट कर रहे हैं, और एक एडिशनल कोल्ड स्टोर भी बना रहे हैं। सर, मार्केटिंग में आपका कोई रोल नहीं है? मार्केटिंग में हेल्प नहीं करते? उसमें जो हमारा मार्केटिंग का पैटर्न है वो है शोकेसिंग का। जैसे बाहर किसी भी स्टेट में जब भी कोई ट्रेड फेयर होता है, एग्रो ट्रेड फेयर होता है, तो उसमें हम यहाँ के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो वहाँ लेके शोकेस करते हैं, चाहे वो हनी है, चाहे सैफरन है, चाहे वो यहाँ का बादाम है, चाहे वो यहाँ का वॉलनट है। इन सारे प्रोडक्ट्स की हम शोकेसिंग करते हैं प्रमोट करने के लिए। डायरेक्ट मार्केटिंग हम इनकी इतनी ज्यादा नहीं करते। अच्छा, ये जो बाकी सर्विस एरिया जो आपका है, जैसे किसी किसान ने ट्रैक्टर खरीदा हो या कोई टिलर संभाल खरीदा हो, उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, कुछ मैकेनिकल मसला हो गया, आपके पास कोई इस तरह के? हाँ, जो हमारे जो वेंडर्स हैं उनके पास वो फैसिलिटी अवेलेबल है। हमारा अपना कोई सर्विस सेंटर नहीं है, ये सही बात है, लेकिन जो हमारे वेंडर्स हैं, जो हमारे सप्लायर्स हैं, जिनसे हम ये सामान लेते हैं, जो सप्लायर्स हमारे हैं, तो उनके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है। सर्विस की किसी को भी जरूरत है वो वहां पर प्रोवाइड की जा सकती है। तो वो वेंडर्स आपके जरिए से ही? वो हमारे ही जो साथ काम करते हैं, वो हमारे ही जरिए काम करते हैं, वो सही बात है। मतलब इन देयर प्राइवेट कैपेसिटी, मतलब उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होगा? पूरी तरह से प्राइवेट कैपेसिटी भी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते, वो हमारे थ्रू काम करते हैं। कॉर्पोरेशन का हिस्सा है वो वेंडर है, लेकिन वो कॉर्पोरेशन का हिस्सा है। अच्छा, तो आपकी कमाई फिर कहां से होगी जो आप कहते हैं कि आप अपने फंड्स को मैनेज करते हैं? जितने भी मैंने आपको कंपोनेंट्स बताए। कोल्ड स्टोरेज आपने कहा ज्यादा? जी हाँ, कोल्ड स्टोरेज आपने हायर आउट स्टोरेज हमारा है, हमारा फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स है, और प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई हमारा जो मेजर कंट्रीब्यूटर है, जिसमें हम किसानों को या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को ये मशीनरी और जितने भी इनपुट्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं। ये जो एचएमटी में एक हनी प्लांट नहीं, एचएमटी का हनी प्रोसेसिंग यूनिट हमारा नहीं है, हमारा मैंने कहा शायद आपकी एक्सपर्टीज उन्होंने ली होगी उसमें। वो मेरी नॉलेज में नहीं है, हो सकता है मेरे से पहले हुआ हो, मुझे सिर्फ 6 महीने हो गए इस कॉर्पोरेशन में, तो जो आप जिसकी आप बात कर रहे हैं यूनिट की, वो मेरी नॉलेज में नहीं है। पैडी कल्टीवेटर को आप इसके अलावा क्या फैसिलिटीज देते हैं आपकी तरफ से? किसको? जो पैडी हमारा, जो शाली हमारा बनाता है, वो राइस ग्रोवर, वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का मैंडेट है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जितना भी फैसिलिटी इस फार्मर को चाहिए, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट है या उसको ये सीड्स प्रोवाइड करने हैं, वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है, कॉर्पोरेशन नहीं प्रोवाइड करती। नहीं, एग्रो इंडस्ट्रीज का कोई रोल नहीं है उनके साथ, कोई उनकी हेल्प करने की? नहीं, उसमें जो डायरेक्टली, जैसे आप हॉर्टिकल्चर में कोल्ड स्टोरेज वगैरह देते हैं फ्रूट के लिए, एग्रीकल्चर में या जो सब्जियां वगैरह उगाते हैं, सब्जियों की तो मैंने बात की आपको। जो फूड प्रोसेसिंग जो हमारा कोल्ड स्टोर है, उसमें तो स्नो पीस का बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट हुआ है, जो यहां से एक्सपोर्ट हो गया फिर इंग्लैंड थ्रू एपीडा, तो उसमें एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन भी एक स्टेक होल्डर है। अच्छा जी।
उसमें आपको ये सक्सेस मिली कि अब वो बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल वो एक्सपेरिमेंट रहा, तो उम्मीद है कि वो अगले साल फिर उसको कंटिन्यू करेंगे और उसमें जो एरिया है वो बढ़ाया जाएगा ताकि प्रोडक्शन बढ़े और जो स्टॉक है जो बाहर एक्सपोर्ट किया गया वो भी उसका क्वांटम भी बढ़ जाए। मेजर प्लान्स क्या हैं आपके? पहले ही मैंने अर्ज किया, वो हो गया ना कोल्ड स्टोरेज की, आपने जैसे दिल्ली की आज़ादपुर मंडी की बात करी कि आप उसको रेनोवेट कर रहे हैं। जी हालांकि वो बहुत बहुत पुराना है। नहीं, नया हम बना रहे हैं वहां पर, एक एडिशनल कोल्ड स्टोर वहां पर बना रहे हैं जी। पुराने को पहले का मॉडर्न जो लाइंस पर रिनोवेट कर रहे हैं, एक एडिशनल कोल्ड स्टोर भी बना रहे हैं। तो जहां जो आपने कश्मीर में जो आपने बनाए हैं कोल्ड स्टोर फ्रूट के लिए, जी, जैसे हमारा शुपियन एरिया है, नहीं वहां पर एरिया वो, है, वो उसको सीए स्टोर कहते हैं, वो कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोर है जी। हम सीए स्टोर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, हमारा कोल्ड स्टोर का ये बिजनेस है। हम सीए स्टोर्स में हम सीए स्टोर्स नहीं बनाते। जिसकी आप बात करते हैं जो प्रोडक्शन एरिया में है जी। वो कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोर है। हमारा स्टोर वहां पर होता है जहां पर यूजुअली बेचा जाता है प्रोडक्ट, वो कोल्ड स्टोर है। अच्छा, जिस जगह पर इसकी मार्केटिंग होती है, जिस जगह पर मंडी होती है, जैसे यहां से फार्मर ने अपना जो प्रोडक्ट है वो ले लिया आज़ादपुर तक, आज़ादपुर में अवेलेबल नहीं है उसको मार्केट, उसको अपना प्रोडक्ट हो यहां से लेके विद होल्ड करना है तब तक जब तक उसको अच्छा दाम मिलेगा, जब तक मार्केट उसके फेवर में हो, फिर वो हमारे कोल्ड स्टोर में अपने प्रोडक्ट को रखता है। हनी के लिए आप कंप्लीट पैकेजिंग भी यही करते हैं जो? जी हाँ, पूरा प्रोडक्ट हमारा जो है पैकेजिंग प्रोडक्शन से लेके प्रोडक्शन जो हमारा फार्मर करता है और फिर उसकी प्रोसेसिंग और पैकेजिंग और मार्केटिंग, वो तीनों। बी हाइव्स वगैरह आप ही देते हैं? नहीं, बी हाइव्स हम नहीं देते, वो फार्मर थ्रू एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ले लेता है। तो मतलब वो अपना प्रोड्यूस आपके पास ले आता वो है? हम उनका प्रोड्यूस ले लेते हैं, हम उनकी प्रोड्यूस की प्रोसेसिंग भी करते हैं और मार्केटिंग भी करते हैं। जैम्स वगैरह जेलीज में? जी हाँ, वो तो मैंने पहले ही अर्ज जी। किया, जो हमारे फूड प्रोसेसिंग यूनिट है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ जैम्स और जेलीज बनती हैं और बनती ही नहीं, फिर उनकी मार्केटिंग भी होती है। मार्केटिंग विद इन वैली? नहीं, बाहर भी आपकी अपनी सेल्स आउटलेट्स होंगी? हमारी अपनी सेल्स आउटलेट है। सही बात है। कोई अगर आपके साथ कनेक्ट होना चाहे कि साहब मैं आपकी तरफ से ये चीजें बेचूंगा, तो उसको आप देंगे इस तरह की कोई फैसिलिटी? अगर कोई भी ऐसा कोई बिजनेस प्रपोजल हमारे पास आता है तो उसको कंसिडर किया जाएगा ऑन मेरिट्स, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। कोई भी अगर बिजनेस प्रपोजल ऐसा आता है, कोई भी एंटरप्रेन्योर आता है हमें ये बिजनेस हम आपका ये प्रोडक्ट बेचेंगे, तो उसको कंसिडर किया जा सकता है और अगर वो बहुत ही वायेबल होगा तो उसको एक्सेप्ट भी किया जा सकता है। जी, मुझे लगता है हमारे पास टाइम की कमी हो गई, अब ख़त्म ही हो गया टाइम मान लीजिए। तो बहुत शुक्रिया मंजूर साहब हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए और फ्लोरिकल्चर के बारे में या एग्रो इंडस्ट्रीज़ के बारे में जो बेसिक जानकारी वगैरह थी हमारे लोगों को दी, हमें दी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। और नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।